Not in a very motivational way that eat, pray, hustle, love, steal, etc., etc. No, not that philosophical way, but they have taken it apart like good mechanics and put it together like good philosophers. This is what I figured out when I first read the book, which of course took about 15 phone calls from Sudipto for me to finish reading the book, because the moment I started it, next day I sent the foreword, because I finished reading the whole book in about less than 24 hours. So it's a very tasty read. I started on Friday afternoon and I sent it to you by 7 o'clock, 8 o'clock next day evening. So it took me only that much. So I kind of say it with some bias, because one of the authors, Sudipto, my schoolmate, we went to the same school, possibly worried about the same exams, dodged the same Sanskrit teacher, and shared the same early body. And what if we had bunked less? What if we had taken our exams a little more seriously? What if we had submitted all our homework on time? Well, একবার সবাই ফ্রন্টে সেন্টার একটু মোবাইলগুলো নামাবে সামনে। Today's competitive environment. Can we have a round of applause for him? The last couple of 2 days, we are just finding out. Many of these works have achieved bestseller status, and Joaquin sir has had the privilege of collaborating with talented and authors for his music. Talking a little bit about the book Life Without If, how it explores the common use of what if words can hold us back and create anxiety. The book argues that while ifs often symbolize fear and indecision, they can also be reframed as opportunities for growth. If can stand for identifying potential and focused action, transforming fear into motivation. The book emphasizes the importance of mastering the balance between minimizing negative ifs and amplifying positive ones to lead a purposeful, confident life. Just imagine a
achieved by following the wisdom in this book. With practical strategies, inspiring stories, and actionable tips, this book empowers you to design a life of fulfillment and success. I would like Sanjoita to talk a little bit about our esteemed guests involved this year. বৃষ্টি হলেই মনে পড়ে অঝোর ধারে বৃষ্টি। তো বৃষ্টি অনেক কিছু মনে পড়ে না, আজকে যেরকম মনে পড়ছিল যে পুজোর সপ্তমীতে যদি কথা বলা যায়, এমন কবিতা আছে রবি ঠাকুরের, সেইগুলো কবি আজকে দেখুন বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা মনের টানে সাহিত্যের টানে প্রেমী মানুষরা একত্র হয়েছি সব কিছু থেকে। আজকে কিন্তু সপ্তাহের দিন, কিন্তু অফিসের দিন, তার সত্ত্বেও আমরা চলে এসেছি সাহিত্যপ্রেমীরা বইকে সঙ্গে করে, সিরিজগুলো বইকে সঙ্গে করে এবং কিছু কথা শুনবো বলে। তো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অক্সফোর্ড এক্সপ্লোর। আই এম Sanjoita, I convey my work. Many of these works have achieved bestseller status, and Joaquin sir has had the privilege of collaborating with talented round of applause for him. So I kind of say it with some bias because one of the authors, Sudipto, my schoolmate, we went to the same school, possibly worried about the same exams, dodged the same. Tough honor for me to talk up with these two gentlemen who are to my bed. And so good evening everyone. I'm Joaquin, driver's kind of servant. So let me start my time by first saying how thankful I am that all of you took out precious time from your obviously busy schedule and came here today to encourage us in this movement, which is very important. It's a milestone day in
ways. So now let me tell you something that's very interesting. आज की ये जो किताब है इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो किताब है ये देखिए ये है लाइफ विदाउट ये बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही इंट्रीगिंग एक टॉपिक है जिसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो मेरा एक टेक अवे बहुत बढ़िया टेक अवे हुआ आज, वो ये है इसको साथ लेके ही हम लोग चलते हैं जीवन में। हर पल इफ होता है क्योंकि अगला पल जो है वो मालूम नहीं है मुझे। उसके बारे में अगर मेरे दिमाग में कोई इफ आ जाए, सच बोलूं तो उस इफ का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है मुझे पता ही नहीं है। तो अभी इफ सोच के हम लोग डरते हैं, हम लोगों को लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अगर वो हुआ तो ये हो जाएगा। आखिर में ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और अगर हुआ भी तो फ्यूचर में जाके जब फ्लैशबैक में जाके हम लोग सोचते हैं तो पता चलता है कि जो डर था क्योंकि वो हुआ जीवन में, तभी फिर से हम लोग उठना सीखे। गिर के फिर उठना जो सीखना होता है वो इसलिए, हम माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी साफ नहीं है, जो गिर के फिर से उठना जो सीखना होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो इफ़ कभी हुआ था, अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई भी असल में एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बनना कभी भी नहीं सीखते। तो इसका मतलब जो है जीवन के हर समय बदल जाता है। आप जो हिंदी बोल रहे हैं ना वो बहुत अच्छी है। आप बंगाली होके हिंदी बोल रहे हो और इतनी फ्लुएंटली बोल जा रहे हैं। आप हिंदी के लिए मत सोचिए, आप ये मतलब आपने हिंदी जगत के लोगों को अपना लिया है तो हिंदी जगत भी आपको एक दिन अपना लेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझे। और फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर ऐसा हुआ कि होता है अपना लिया तो इससे बढ़िया बात एक एक्ट्रेस के लिए और क्या हो सकता है। आप अपना नाम बताइए। मेरी नाम है देवोलीना दत्तो। नहीं, ये एक्चुअली होना चाहिए मेरा नाम है देवोलीना दत्तो। मैंने करेक्ट कर लिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं सीख रही हूँ हिंदी। मेरा नाम है देवोलीना दत्तो। थैंक यू। देखिए देवलीना ने फिर भी हिंदी बोलने की कोशिश की, तो दर्शकों आप देवलीना को एक्सेप्ट करिए और उन्हें हिंदी जगत में भी अपनाएं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं सदीनामा से मीनाक्षी सागरनीला आपसे बातचीत कर रही हूँ। सर, आज जो आपकी किताब लाइफ विदाउट ऑफ इफ, ये इसका मतलब क्या सब्जेक्ट है और आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? अगर मैं बोलूं कि काश बिना जिंदगी, लाइफ विदाउट इफ इज काश बिना जिंदगी में अगर काश ना होता तब क्या होता, और उसको काश बिना जिंदगी कैसे हम बना सकते हैं। जिंदगी के हर मोड़ में हमें कोई ना कोई काश का मुकाबला करना पड़ता है कि काश अगर नहीं होता, काश अगर हम गिर जाते, काश अगर वो होता, काश अगर ये होता, और उस सिलसिले में हम जिंदगी में उलझ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये जो किताब है इसमें बोलता है जिंदगी में काश होना जरूरी है और जिंदगी में उस काश को कैसे आपको हैंडल करना चाहिए ताकि उस काश का मतलब यदि ओके, सो इफ अगर नहीं होता तो इफ नहीं होना संभव नहीं है, पर इफ के साथ आप जिंदगी को कैसे बाय डिजाइन जी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली जीते हैं बाय डिफॉल्ट, बहती गंगा में बहते हैं, ठीक है। तो ये किताब आपको बताएगा कैसे जिंदगी अपने डिजाइन में, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग अपने हाथ में, क्लच आपका पैर में, वैसे ही आपका जिंदगी है तो आपके ही हाथ में स्टीयरिंग होनी चाहिए और आपके ही पैर में क्लच और ब्रेक होनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है, वही है ये किताब। तो क्या ये मोटिवेशन के ऊपर है? ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से कोई दे सकता है, पर ये जो है ये साइंस है। साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग बाय डिजाइन, ये एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को फॉलो करने से जिंदगी का हर चढ़ाव उतराव में आपको इफ को सामना जो करेंगे उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे।
आज तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं? नहीं, ये मेरा पहला किताब है। इनका काफी सारा किताब है पर मेरा पहला किताब है। आपने इनके साथ क्यों लिखी मिलके? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमको खुद को पता नहीं है, इनको भी पता नहीं है कैसे हम मिले, कैसे हम दोनों एक हुए। हाँ, सुदीप्त चौधरी और उस जॉय किंग बिरजे, ये दोनों मिलके हम चाओ किंग बन गए। और कैसे बन गए उसका कहानी अभी आपको सुनाई देगा। हम दोनों एक दूसरे में एक भाई, एक दोस्त, सिर्फ वही नहीं, उसको मिला जो हम बोलते हैं उनको समझ में आता है और जो वो बोलते हैं उस हमको समझ में आता है। और जो हम बोल रहे हैं कि लाइफ विदाउट इफ, हम दोनों लाइफ में काफी सारा उतार चढ़ाव से चले हैं, काफी सारा इफ का सामना किए हैं और उसको उभार के हम आगे बढ़े हैं। जो ये मूल बंधन के लिए हम ये चाओ किंग बनाए और सुदीप्त चौधरी और जॉय किंग बिरजे आज लाइफ विदाउट इफ आपके सामने पेश कर रहा है। सर, आपका शुभ नाम? सुदीप्त चौधरी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाइफ विदाउट इफ मतलब काश हमारी जिंदगी में हम कुछ कर पाते, हम कर सकते हैं, और काश केवल करने से नहीं होता, उसके बारे में सोचने से नहीं होता। धन्यवाद। हाँ, जॉय किंग सर, आपने बताइए अपने इस किताब के अनुभव। वैसे तो सुदीप्त सर ने काफी कुछ बताई दिया है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है लेकिन मोटिवेशनल बुक नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन हमें आज मिलती है, कल सवेरे क्या करना पता नहीं होता। तो इस बुक में हम आपकी जो गलतियां हैं, आपका स्वभाव, आपके साथ बैठ के उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपको छोड़ते नहीं हैं। एक एक्शन प्लान बनाते हैं जो हर रीडर के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग सा बन जाता है और वो एक्शन फॉलो करके वो जिंदगी भर उनके सामने एक ब्लूप्रिंट होता है, एक गाइड होता है, ताकि वो पिछली गलतियां दोबारा ना दोहराए और सही दिशा की तरफ चल पड़े। तो आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 4 हो चुकी है। और चारों क्या डिफरेंस है? हर अलग टॉपिक। एक पुस्तक का बताइए, इसके बाद वो पहली वाली थी मुंबई वर्सेस कोविड नाम की। वो कोविड में जो मुंबई शहर में कठिनाइयां और संघर्ष हुए हैं उसके बारे में। और उसके पहले एक लव स्टोरी थी। उसके पहले एक बॉलीवुड की शख्सियत की ऑटोबायोग्राफी थी। वो मैं नहीं बता सकता, कॉन्ट्रैक्चुअल घोस्ट राइटर था। चलिए, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हर किसी को जिंदगी में ये समझना जरूरी है कि हमारे जो सपने होते हैं, जो बहुत डीपेस्ट सपने होते हैं, गहरे विचार और चाहत जो होती है, वो इसलिए आगे नहीं है और इसलिए हमसे दूर नहीं है कि हम उसके काबिल नहीं है। वो इसलिए दूर है क्योंकि हम खुद को सही प्रश्न, सही सवाल नहीं पूछते। और ये किताब आपको वो सिखाती है कि आपके सही सवाल क्या है। तो अगर आप वो पूछते हो तो कामयाबी से कोई आपको नहीं रोक सकता। धन्यवाद सर, आप अपना नाम बताएं। जॉय किंग बिरजे। और क्या करते हैं वो भी बता दीजिए, डेजिग्नेशन अपना। मैं एक लेखक हूँ, दैट इज माय फुल टाइम प्रोफेशन। थैंक यू मैम। सर, स्टे बैक।